Very good evening, students. Welcome to the VD Academy. So I welcome you here to discuss about the topic sound. So आइए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है sound. So आइए जानते हैं what it describes. So what is sound? My dear students, तो sound बोलते ही देखो हमारे दिमाग में क्या आता है? What is sound? Sound is a type of energy. First of all, it is a type of energy. अब आ गया. What is energy? Energy is nothing but a what? Capacity to do work. That is nothing but the capacity of doing any work. Okay, let us see. It is not a complete definition of sound. So it is a type of energy which basically provides a sensation to our ears. जो हमारे means हमारे ears को क्या करता है? It basically it is the energy which provides a sensation. Means it it makes you hear, it makes you analyze, it makes you understand so many things. Let us see. So it is a type of energy which provides sensation to our ears. तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हमें याद रखने हैं. पूरा मीन्स यू कैन से दैट स्टोरी नहीं पढ़नी है, बस हमें यही स्टडी करना है. शॉर्ट एंड क्रिस्प. सो इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड अगेन which is nothing but capacity to do work or capacity of doing any work. किसी भी काम करने की जो capability है, that is nothing but called as energy, provides sensation to our ears. Again, अब आइए जानते हैं, let us discuss about in the sound how the sound is created. So the foremost topic is after the sound is vibration. Have you ever heard about a vibration? What is vibration? Vibration के बारे में कभी सुना है, देखा है, खाया है? सुना खाया तो नहीं होगा. So let us see. So vibration. What is vibration? Let's again. The to and fro motion. The to and fro motion or back and forth motion in any object is called as vibration. So देखो क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स. So to and fro motion, what it describes? To and fro motion, like to and fro means आपको पता है, सपोज कोई पर्सन यहाँ पे है. Okay, let the name of the person is A. So A is what? A क्या कर रहा है? It is the main position or you can say that ये क्या है हमारा starting position. What is happening? He is coming back and after that he is moving forward. Means back and forward movement in any of the object. किसी भी object में अगर back and forth motion है, back and forth as well, back and forth and to and fro motion, back and forward, backward and forward or back and forth. Then an object is having a word. It tends to create a sound. Next, let us continue. So ये हो गया हमारा vibration. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है sound. So let us discuss what are the else topics that are included in the sound. Let us proceed.
होप सो माय स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा. ओके, let's continue. Next, let us see how the propagation of sound is done. How the sound is propagated. So where is it? Okay. So how the propagation of sound is done? What is mean by propagation? Propagation means क्या है? What is mean by propagation? Okay. Let's see. Propagation means traveling from one place to another. Like example, एक जहां से ऑरिजिनेट हो रहा है साउंड एंड जहां तक वो जा रहा है, मींस सोर्स एंड डेस्टिनेशन यू कैन से. लाइक एग्जांपल, एक हमारा सोर्स है जहां से साउंड ओरिजिनेट हो रहा है, सोर्स ऑफ साउंड यू कैन से. वो कहां जा रहा है? डेस्टिनेशन. लाइक एग्जांपल, ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ साउंड लाइक इन ह्यूमन बीइंग्स इज माउथ. हमने ले लिया. एक सेकेंड, ड्राइंग अच्छी तो नहीं है. Okay, so here is a person is trying to deliver some words, message. कोई मैसेज है, ये क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है. कोई पर्सन है ये, सपोज मिस्टर एक्स ले लिया हम लोगों ने. अब देखो इन्होंने क्या किया? ही हैज डिलीवर्ड अ मैसेज. अब देखो क्या हो रहा है? ये इट इज हर्ड बाय सर्टेन डेस्टिनेशन. लाइक एग्जांपल आर हियर. ओके, सो ये क्या हो गया? हमारा प्रोपगेशन हो चुका है. So let us see what else are given. What are the else we can discuss in the topic. You can note it down as of your choice. आगे बढ़ते my dear students. Propagation of sound. Let us continue. What else we can discuss in the terms of propagation? So before discussing about the propagation, we can discuss about the oscillation. What is oscillation? सबसे पहले प्रोड्यूस तो हो गया हमारा. ओके, व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेशन? दैट इज नथिंग बट आल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन. सो देखो माय डियर स्टूडेंट, है क्या? लाइक एग्जांपल, हमने ले लिया एक फिक्स्ड एरिया. लाइक एग्जांपल आपका वॉल हो सकता है, फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, उससे आपने क्या एलोंगेट कर लिया? जब एलोंगेटेड एंड बॉब, कोई भी एक रबर बॉल ले सकते हो. यू कैन टेक अ रबर बॉल एज वेल, प्लास्टिक बॉल, कोई भी चीज आप ले सकते हो जिसका थोड़ा सम अमाउंट ऑफ मास हो या वेट हो. ठीक है, अब देखो क्या है? इट इज अ बॉब, इट इज एलोंगेटेड. या आप क्या करोगे? बाय द यूजिंग अ रोप और थ्रेड आप इसको क्या कर लोगे? एलोंगेट कर लोगे. लेट अस सी, सपोज इट इज एन पोजीशन ए, इट इज अ बी, इट इज अ सी. इसे और भी पोजीशन आप डिनोट कर सकते हो. जैसे एग्जांपल, ये हमारा मेन पोजीशन होता है, इट इज अ मेन पोजीशन. And these two positions are the extreme positions. B and C are the extreme positions. So see here,
ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन देखो इसमें भी होगा, द टू एंड फ्रो मोशन एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अब देखो ऑसिलेशन क्या होगा इसके टर्म्स में, इस पर्टिकुलर एपरेटस के टर्म्स में, इस डायग्राम के टर्म्स में। लेट अस सपोज इट इज द मेन पोजीशन, द बॉब विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट होगा, ए से जाएगा बी, ठीक है, वापस बी से जा रहा है सी, ठीक है, वापस सी से आ रहा है ए। मींस ये इसने क्या कर दिया, ए से बी, बी से सी, सी से अगेन ए, मींस ए से गया बी, बी से गया सी, सी से वापस आया ए पे। सो इट हैज कम, द ऑब्जेक्ट हैज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, इसे कहते हैं हम ऑसिलेशन। और सेम जो कि हमारे वाइब्रेटरी मोशन में भी होता था। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द टॉपिक्स। ये हो गया हमारा ऑसिलेशन। होप सो समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर नहीं आया होगा यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमेंट्स सेक्शन। लेट अस कंटिन्यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू फॉर द फर्दर टॉपिक्स। ऑसिलेशन के बाद वी कैन डिस्कस अबाउट द एम्पलीट्यूड। इसी में एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। What is amplitude? Sorry. What is amplitude? अब देखो my dear students, what actually the amplitude reveals. Like example, अभी हम लोगों ने बॉब लिया था, छोटा सा बना दे रहा हूं। It is a fixed position, fixed point, ठीक है। अभी हो गया हमारा मेन पोजीशन, अगेन बी वाला पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, एंड इट इज द सी पोजीशन, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। अगेन मींस मैक्सिमम एलोंगेशन फ्रॉम ए टू बी एंड मैक्सिमम एलोंगेशन फ्रॉम ए टू सी, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। क्या कह सकते हो, मीन पोजीशन, द मैक्सिमम लिमिट achieved by the object in oscillation, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट जो अटेन कर पा रहा है ये, चाहे वो टू डायरेक्शन और फ्रो डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। अगर आप पल्स के रेट में, अगर वेव के केस में भी अगर आप डिस्कस करते हो, मींस इफ विल डिस्कस, सो क्या होता है, सपोज इट इज द ओरिजिन पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो मैक्सिमम एलोंगेशन है, ठीक है, इन द अपर डायरेक्शन, इन द क्रेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया हमारा क्रेस्ट, ठीक है, जो कि हमारा मिडिल पोर्शन से अपर सेक्शन में जो होता है, और ये हो गया हमारा ट्रफ, ठीक है। ये भी मींस वेदर इट इज इन द पॉजिटिव वेव और इन द नेगेटिव वेव, दोनों में जो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। सो आज के लिए इतना काफी है माय डियर स्टूडेंट्स। टुमारो विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड कीप वाचिंग। थैंक यू।